तो बाबू पिछले क्लास में हमने देखा था वो थोड़ा बहुत करंट व्हाट इज करंट इज स्केलर और वेक्टर, यूनिट ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? सो नाउ विल स्टडी द न्यू फिजिकल क्वांटिटी over here, and that is called the current density. Current density. So it's a new and very interesting topic. So current density. Current density. And this is the second lecture of electric current. देखना पूरा आ रहा है इसमें सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रिक करंट इसमें डालना पड़ेगा सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट डेंसिटी दिस इज आवर टॉपिक, स्क्रीन पे कर देना। करंट डेंसिटी दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आवर टॉपिक इज करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी इज व्हाट? लेट अस राइट द डेफिनेशन। इट इज द करंट डेंसिटी द करंट पर unit area. Current density is the current per area. Second, it is denoted by J. It is denoted by J. Denoted by J. Also, it is a vector quantity. You will study why. Why? Because I is a scalar quantity and area is a vector quantity. I am saying that current is the ratio of charge and area. So why your current density is a vector quantity. So we will discuss. Clear? So current density in the current per area, it is denoted by J. It is a vector quantity. Clear? So we will study much more about current density. Why current is a vector quantity, area is a scalar quantity. But clear? So we will discuss. So first of all, this is the statement. Current density is the current per area. But this is the not exact definition. This is the not according to this definition. Current density will be different for different person. Clear? This is the not exact definition. If you are using this definition, then every individual will have different result. Consider a cross section. This is a wire. And let us assume some current I is flowing through the wire. So this is the direction of current. Now I am asking that find the current density. This is our question. So you have to find J. So if you are applying this formula, current upon area. So if you are in this formula, then different person will get different result because देखो क्या होगा कि इधर मान लो करंट आई जा रहा है। तो तुमने मान लो कि वायर ऐसा भी हो सकता है, वायर ऐसा मान लो या सेम वायर को हमने अगर ऐसा काट दिया तब क्या होगा अपना ये वायर का लूप। So there are two person A and person B. There are two persons. So for this person, let us assume area of this one is AA, and area of this one is AB na. Clear? So for this person, your current density JA is equal to I upon AA, and for this person current density JB will be equal to I upon AB. तो इसके लिए अब एरिया क्या होगा? ये हो जाएगा। इसके लिए एरिया क्या होगा? ये होगा। So two persons are calculating the current density, and one is finding this, another is finding this. So from here your A is less than AB. So what? JA will be also less than JB. इसका मतलब क्या होगा? इसका करंट डेंसिटी क्या होगा? अलग होगा। इसका करंट डेंसिटी क्या होगा? अलग होगा। इसका करंट डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका क्या होगा? कम होगा। कोई और पर्सन उसने क्या किया? बस इसको और ऐसे करके काटा, ऐसे करके काटा। So for this person, let us say this is C person. So for C person,
your area will be like this ना, इसके लिए तो क्या होगा और एरिया बढ़ जाएगा ना यार। लेट अस दिस इज AC, so AC will be greater than AB will be greater than AA, means your IC will be less than JC will be less than JB will be less than JA। इसका मतलब है same amount of current is flowing through the wire, but for different person your current density is different। So कौन सा लूँ मैं, कौन सा current density, ये लूँ this is the fact, because this is fact is that current through the wire is current density through the wire is fixed same, यानी कि ये इसके थ्रू इस वायर की बात करो, for this wire and for this wire current density will be same, but if you are using this formula different persons are getting different value of current density, तो क्या लूँ कि सबका क्या होना चाहिए, करंट डेंसिटी क्या होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, for B and for C current density should be same, and if they are using this formula they are getting different value of current density। इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट, इसको अगर सही कर दिया जाए तो सबका क्या रिजल्ट सही आएगा। क्लियर, तो लिखो कैसे कैसे इसको मॉडिफाई करने के बाद सबका रिजल्ट सही आएगा, लिखो फिर बताओ। मेरा सिर्फ दिस इज तो देयर आर 3 पर्सन, हमने देखा 3 पर्सन, इसको देखा था एक मिनट लगता है। दिस इज द वायर, क्लियर, एंड फॉर पर्सन ए उसने क्या हुआ यहाँ से एक बी ने क्या किया यहाँ से कट कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा for B your shape of the wire will be like this, and as there is C and C is cutting the wire like this, so for C, so this is for B and this is for C, so let's say this area is AC, this area is AB and this area is AA, so what AC is greater than AB is greater than AA implies your JC will be less than JB will be less than J, but experimentally it is found that J is same for both all wires A B C, सबके लिए J सेम। इसका मतलब क्या है, there is something wrong with the definition, and definition what J is equal to charge per unit। This definition is not exactly right, so let us assume हमने क्या, मैं modify ये करता हूँ, let us assume this is the direction of area vector which is NA मान लो, and this is the direction of area vector which is NC for this surface and NA for this surface, and if this angle is theta, so if area of this one is AA, so component of this area along this will be what, A cos theta na, if this area of this one is AB, this surface, and this is the normal vector NB, and this is the horizontal and angle theta, so this one यानी इसको अगर दो कंप्लीट करो तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू AB cos of sin of थीटा ना, यही एरिया होगा ना। क्लियर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, एरिया मान लो ये थीटा A है और ये क्या होगा थीटा B है, तो फॉर दिस योर एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया विल बी इक्वल टू A is equal to AC cos of theta C, and these two area means, let us say this is some A3 and this is some A2 is equal to AB cos theta and this is A, so if you are considering this area and this area, they will be equal, so AA is equal to A2 is equal to A3, इधर ओके, इसका मतलब है तो horizontal component of area will be same for all these 3 wires, यानी कि इसका कंपोनेंट इस एरिया का कंपोनेंट इधर, इस एरिया का कंपोनेंट इधर क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो अब बात करोगे तो क्या होगा, I इक्वल टू, अगर J की बात करोगे तो JA इक्वल टू I अपॉन AA एंड JB इक्वल टू I अपॉन A2 एंड JC इक्वल टू I अपॉन A3,
3 and you know your AA is equal to A2 is equal to A3, so what JA is equal to JB is equal to JC ना, इधर ओके क्लियर, इधर ओके। इसका मतलब डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चार्ज अपॉन एरिया नहीं करके हम क्या करेंगे चार्ज अपॉन एरिया, बट दैट एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट, दैट एरिया शुड परपेंडिकुलर टू द करंट। अगर एरिया ये तो करंट क्या होगा इधर, अगर करंट एरिया तो एरिया कैसा ऐसा समझिए, अगर करंट ऐसा जाता है एरिया ऐसा समझिए, करंट ऐसा जाता है एरिया क्या होगा ऐसा समझिए, ये एरिया बाबू और ये क्या करंट, मींस एरिया एंड करंट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि हमने हमारा एरिया ये है, लेकिन हम एरिया कौन सा लेंगे, करंट इधर जा रहा होगा, करंट इधर जा तो हम एरिया वाला ये वाला लेंगे। तो इसके एरिया मान लो पूछा है ये वाला एरिया कितना होगा, मान लो इसके एरिया ये किसका होगा, ये cos थीटा। अगर इधर करंट जा रहा है बाबू तो ये एरिया गिवन तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये cos थीटा। इससे किसमें क्या है कि एरिया भी इधर ही है, करंट इधर और एरिया क्या इधर, यानी कि हियर योर एरिया एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हियर नॉट। तो हम क्या करें उसका ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो सरफेस के क्या हो परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसा सरफेस लेना है कि उसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जे करंट डेफिनेशन क्या होगा, करंट डेंसिटी इज द करंट डेंसिटी इज द current density is the current per unit area, current per unit area, but your area should be perpendicular to the surface. Current density is the current per unit area normal to the करंट क्या होना चाहिए, सरफेस का हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। आगे समझ तब डेफिनेशन क्या होगा, योर J इक्वल टू I, या करंट मुझे बता लिख रहा हूं तुम लोग बोलते नहीं, करंट इक्वल टू I अपॉन A cos ऑफ थीटा, देन दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर। अगर मान लो कि ये वायर है बाबू, तो अगर इधर करंट है I इधर ही है और एरिया भी क्या होगा, एरिया का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा इधर ही होगा, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो क्या होगा I अपॉन A आ जाएगा, इधर ओके इधर ओके। सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज द करंट फॉर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, या करंट पर एरिया, बट योर करंट एंड एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। सो करंट डेंसिटी इज द करंट पर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जो भी करंट होगा वो सरफेस के क्या से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब क्या होगा दोनों का रेशियो लोगे तब क्या आएगा, जो करंट डेंसिटी आएगा दैट विल बी सेम फॉर, यानी कि कोई सा वायर लो इधर काटो कोई कहीं से भी काटो, तुम ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, फॉर ऑल दिस थ्री योर दिस कंपोनेंट विल बी सेम बिकॉज़ थीटा इज इंक्रीजिंग ना, सो एरिया इज इंक्रीजिंग। क्लियर। सो जैसे जैसे ये काटते जाओगे थीटा बढ़ता जाएगा, तो हमने क्या लेना, हमने ये वाला ही लेना है, और सबके लिए क्या है सेम, यानी इसके लिए ये वाला कंपोनेंट एरिया का क्या होगा हमेशा सेम होगा। आर ये बात समझ। सो करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। सो I इक्वल J इक्वल टू I अपॉन A cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया, बोलो एरिया वेक्टर। क्लियर। इसलिए डेफिनेशन चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि अगर वो ये डेफिनेशन लगाते थे सो फॉर डिफरेंट पर्सन वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी व्हिच इज रॉन्ग, एंड इफ यू आर यूजिंग दिस डेफिनेशन फॉर डिफरेंट पर्सन, तुम कोई सा वायर लो यार, तुम वायर को दो पार्ट में क्यों ना कर दो, ऐसे एकदम पूरा ऐसे इस कॉर्नर को उठाओ और इसे काट दो, यानी कि ऐसे काटो वायर को, तब भी क्या होगा उसका, यानी कि अब ये वाला बहुत ज्यादा होगा लेकिन ये वाला कंप्लीट क्या आएगा, तब भी सेम आएगा, इधर ओके। सो इसको लिखो, देन वी स्टडी व्हाई योर करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट योर करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर वन। क्यों कह रहे हैं उसको अब बताऊंगा, इसको लिखो। तब ये एक और बात बताया तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये जैसे मैंने ये किया, देखो ये AC ये वाला एरिया है बाबू, और हमने A3 इसको ले लिया, सिमिलरली AB ये वाला एरिया हमने A2 इसको ले लिया, और इसके लिए क्या होगा कि ये वाला एरिया, ये क्या ऑलवेज परपेंडिकुलर करंट है ना, ये वाला एरिया परपेंडिकुलर है, तो हमने AA को A ही बोल दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि A3 A2 और कहां से है, कौन सा कैरेक्टर है। तो क्लियर, यानी कि ये वाला एरिया एंड दैट विल बी सेम फॉर ऑल these three wires, so current density will be same. So now we will define again current density. Clear.
So current density is the current per unit area normal to the surface. Normal to the surface. So what? And also direction of current density will be in the direction of electric current. जिधर इलेक्ट्रिक करंट होगा बाबू उधर क्या करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा. इसका मतलब ये है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I, so this is the direction of J. इधर so J is equal to I upon A cos of theta. So I am saying that your I is a scalar quantity and J is a vector quantity. We are assuming J as a vector quantity and area is vector quantity. Why we are using current as a scalar हमने बता दिया था, but why we are using J as a vector quantity we'll discuss here. Actually होता क्या हो definition समझो. Definition ऐसा नहीं है. Definition क्या है? Current density is the current per unit area normal to the surface. Our definition is not like this. Current density is the current per unit area. Think about this definition. This is the definition. Current density is the current per unit area, and this is the definition. Current density is the current per unit area normal to the surface. So what are the differences between the two? This is the current with current per unit area. This definition is that current per unit area is the current density. But this statement tells that current density is the current per unit area, but your current should be normal to the surface. Means according this definition defines the direction of area and also defines the direction of current. यानी किधर करंट होना चाहिए और किधर एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए, तब उन दोनों में क्या डायरेक्शन लोगे, तब क्या मिलेगा तुम्हारा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन मिलेगा. यानी विद द हेल्प ऑफ दिस definition you can relate the direction of current and also direction of area. And but with the help of this definition it is not clear in which direction your current is flowing and which direction you are taking the area. And for different person your current density was found to be different. A B C के लिए क्या था, अलग अलग था. So इसमें particularly we are stressing the direction between, or you are emphasizing on the direction between the current and the area vector. Means there is a relation between the direction of current and the direction of area vector in order to find the current density. Clear? So अगर current density का अगर vector नहीं लोगे, that this is the exactly definition segment. But with the help of definition we are finding that different persons will have different values of J, which is wrong, experimentally wrong. So हमने ये definition use किया. ये definition क्या बताता है कि your current density will be in the direction of current density in the direction of current, but that will be the current per area, but that current should be normal to the surface. इसमें डायरेक्शन को हमने पर्टिकुलरली स्पेस दिया, डायरेक्शन पे जोर दिया, इसीलिए हम करंट डेंसिटी को क्या बोलेंगे बाबू, वेक्टर बोलेंगे, स्केलर नहीं बोलेंगे. अगर स्केलर बोलना होता तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला डेफिनेशन वैलिड था. इधर ओके, तो ये लॉजिक है इन ऑर्डर टू अज्यूम द करंट डेंसिटी एज वेक्टर. Current density as vector. Is that okay? So what? This is the relation. So J is equal to I upon A. हम कभी नहीं लिखेंगे. We will always write J is equal to I upon A cos of theta. Now consider a cross section. And current through this is a wire, and current through the wire is different at different point. मान लो कि इसके थ्रू का इतना क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A1 है, मान लो we are dividing this cross sectional area into different part. ये मान लो कि ये वायर है बाबू,
ठीक है, ये वायर तो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करो। ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, मान लो बाबू की ये दिस इज ए दिस इज योर वायर एंड करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, यानी 3 पार्ट में कर दो, ये ऐसा, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन थ्रू अलग अलग करंट है, तो करंट डेंसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है, करंट डेंसिटी इज नॉट सेम ना, अलग अलग। मान लो इसके थ्रू करंट, मान लो इस एरिया करंट थ्रू जा रहा है I1 है, इसके थ्रू क्या I2 है, इसके थ्रू क्या I3 है, इसके थ्रू I4 है, इसके थ्रू I5 है। क्लियर? तो टोटल करंट क्या होगा बाबू, I = I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। so current density through these will be different ना। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ करंट डेंसिटी डिफाइन करने की वाला थोड़ी पहले करेंगे I J = I upon A cos θ, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है ना, यहाँ पे एवरेज दे देगा ना, so this will give the average ना। अब कह रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट बताओ, इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी 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 क्या होगा। so different value, different at different point value of current density is different ना। we will define current density at a point, but we will define current through a given cross section. think about the term current define, current कहाँ define करेंगे, through a given cross section। करंट हमेशा थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं, उसका कुछ एरिया है, और करंट डेंसिटी कहाँ डिफाइन करते हैं, we always define current density at a point, particular point। तो इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो इस पॉइंट के थ्रू एक छोटा सा एरिया लेंगे और उस एरिया के थ्रू देखेंगे कितना करंट जा रहा है, एंड आल्सो द एरिया एंड द करंट थ्रू दैट पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब दोनों का रेशियो लेंगे, तब मिलेगा क्या हमें, करंट मिलेगा। आई बस में अब देखो क्लियर। तो हमने क्या किया कि छोटा सा एरिया लिया DA, और यहाँ से करंट जो जा रहा है वो मान लो डेल्टा एरिया लिया, और करंट जो जा रहा है क्या डेल्टा I है, यानी कि छोटा सा एरिया मान लो ये वाला एरिया लिया हमने, इसके एरिया है D डेल्टा A, इसके एरिया बाबू डेल्टा A, और करंट है डेल्टा I। तो इसके थ्रू जो करंट जाएगा, करंट डेंसिटी I = डेल्टा A अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा A cos ऑफ थीटा, ये J होगा ना। अब ये क्या होगा, J एवरेज होगा, क्या होगा J, क्योंकि एरिया के इसका डेल्टा है ज्यादा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट का जो करंट डेंसिटी होगा थोड़ा सा अलग आ जाएगा ना, है कि नहीं। तो उसके केस में क्या होगा, एवरेज होगा। लेकिन अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करना है तो क्या होगा, इसको J एवरेज बोलेंगे। पार्टिकुलर पॉइंट लिए क्या होगा, योर डेल्टा A टेंड्स टू 0 फॉर दिस केस। क्लियर? डेल्टा A टेंड्स टू 0, उसके केस में क्या हो जाएगा, J इंस्टेंटेनियस = DI upon DA cos of theta। और ये बात समझो, दिस इज द करंट डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस इज द करंट डेंसिटी, एवरेज करंट डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसके केस में हमने एरिया को थोड़ा सा बड़ा ले लिया, तो जो आएगा वो एवरेज आएगा, दैट इज नॉट रियल वन, लेकिन दिस गिव्स द रियल वन इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द टू। क्लियर? सो फार योर I = J = I upon A cos of theta, or you can also write that your J average यहाँ से लिख सकते हो I = J A cos of theta, you can write ना, your J = I upon A cos theta, so I = J A cos theta, इधर हो गया। so you can also write that I = J dot A लिख सकते हो, J cos theta तो I = J dot A, यानी J का डायरेक्शन कितना होगा, लैम्डा डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया का डायरेक्शन कितना होता है, नॉर्मल टू सरफेस। सो I = J dot A। क्लियर? I = J dot A। चलो लिखो, इसको बताता हूं मैं, चलो जल्दी फिर आगे करते हैं। J = I upon A cos of theta, so I = J A cos of theta। so what is this element, I = J dot A। clear? J dot A, and this is the what, this is when J यानी कि current is uniform, current distribution is uniform। तब क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करें। if current density non uniform, then what DI = delta I = J delta A
A ना will apply this clear and if you are talking about instantaneous यहाँ J एवरेज हो जाएगा तो क्या होगा di is equal to J dot da कोई दिक्कत so I is equal to integration J dot da so this is the relation between current and current density and this is for uniform and non-uniform both uniform and non-uniform क्लियर यानी कि J क्या होगा अगर यूनिफॉर्म होगा तब भी आया या नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी क्या होगा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे J यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा इसको बाहर निकाल लेना बिकॉज़ दैट इज एरिया इंडिपेंडेंट तो खाली एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा ये आ जाएगा ये वाला कोई दिक्कत सो दिस इज द रिलेशन I is equal to J dot dA और you can also write I is equal to integration J dA cos of theta this is the relation between current density and current इंट्रोडक्शन तो जल्दी लिखो एंड इन द नेक्स्ट अब मैं इन द नेक्स्ट क्लास अभी पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि मतलब इन द नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ओम्स लॉ है कि नहीं ओम्स लॉ